Okay. So today we are going to clear our concepts regarding biopharmaceutics. We'll solve uh, a bit of MCQs. Okay. And from there we'll solve our concepts and try to solve because this is an important topic. Okay. In biopharmaceutics, I think question आता है, ठीक है? जीपैट में एवरी ईयर ही आता है और आई थिंक करके जाना क्योंकि बहुत जन क्या करता है या इसको छोड़ देता है, सोचता है कि बहुत बड़ा पार्ट है या डिफिकल्ट पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। जीपैट लेवल में उतना भी कुछ डिफिकल्ट आता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो if you know the basic concepts, you will be able to solve the MCQs. Okay, so I will start. Okay, with the first one. So see the question. Okay, question क्या दिया है कि what is the mechanism of drug excretion for skin excretion. Okay, excretion. So can anyone tell me? Let's see. If anyone can tell which one will be the answer. Active secretion is there, glomerular secretion is there, passive diffusion is there, and passive reabsorption is there. ये चार ऑप्शन আছে, ये चारटे ऑप्शन আছে। कौन सा सही हो सकता है एनीवन? In case of excretion, okay, you have to remember. It is told that in case of excretion. active secretion. This won't be active secretion because the reason is active secretion generally takes place in tubular secretion or reabsorption. Okay, in tubular secretion or reabsorption. Okay, tubular secretion or reabsorption. Okay, सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या है? ट्यूबुलर सिक्रेशन या फिर reabsorption में होता है। सेकेंड ऑप्शन है ग्लोमेरुलर सिक्रेशन। ग्लोमेरुलर सिक्रेशन इज related to the process of renal excretion. This is for renal, not skin. Okay, renal excretion, ठीक है। रेनल एक्सक्रीशन जब हम लोग करते हैं तो अब क्या लगता है, दैट इज अवर ग्लोमेरुलर सिक्रेशन, राइट? रेनल एक्सक्रीशन, रेनल एक्सक्रीशन। ओके, उसके बाद क्या ऑप्शन है, दैट इज अवर पैसिव रीएब्जॉर्प्शन एंड वी हैव पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, तो पैसिव रीएब्जॉर्प्शन इज आल्सो अ केस ऑफ रेनल एक्सक्रीशन। ठीक है, दिस इज आल्सो अ केस ऑफ रेनल एक्सक्रीशन। ओके, रेनल एक्सक्रीशन, रेनल एक्सक्रीशन। एंड द लास्ट ऑप्शन जो हम लोग का बचा है दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। उसमें क्या होता है, मोस्टली एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू this without use of any energy. Only in few cases, okay, we use active एक्टिव, जहां पे हम लोग को क्या लगता है कि एनर्जी का दरकार पड़ता है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि हम लोग का हम लोग का जो प्रोटीन या फिर एंजाइम है वो ऐसे रिएक्ट कर देता है कि देयर इज सैचुरेशन इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। सो इन दैट केस वी एनर्जी या फिर carrier mediated is required. Okay, but in case of passive diffusion we don't use energy. Okay, so in this case passive diffusion किस पे डिपेंड करता है, it depends on concentration gradient। ठीक है, concentration gradient पे ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर concentration, राइट? diffusion we know concentration gradient, it depends on the concentration gradient. Okay, and in case of skin accretion we mainly prefer this route. So which one will be the answer? So in this case, passive diffusion will be the right answer. Okay. Okay. Next. Next one is a very good question. That is, which of the following is not a primary objective of phase one reaction? Okay. So in biotransformation, biotransformation, there are in biotransformation, there are two phases. Two phases. What are the two phases? One is phase one, एक है phase one, दूसरा है phase two. ठीक है, फेज वन भी होता है और फेज टू भी होता है। अब मुझे कोई बताओ कि फेज वन में कौन सा होता है, फेज टू में कौन सा होता है? एनीवन? The phase one oxidation and reduction hydrolysis. All these are phase one, right? And in phase two is the conjugation, all right? Conjugation one.
फेज वन में हम लोग का रहता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, राइट। तो इस फेज वन में क्या होता है, इन फेज वन व्हेन अ ड्रग इज हाईली लिपोफिलिक, जब कोई ड्रग क्या होता है, हाईली लिपोफिलिक होता है फेज वन में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इट एंटर्स आवर बॉडी, वो क्या करता है, वो हम लोग का बॉडी में एंटर करता है, राइट। तो बॉडी में एंटर करने के बाद क्या होता है, वी नीड टू एक्सक्रीट इट आउट, ऑब्वियस। सो एट फर्स्ट वी नीड टू मेक इट हाइड्रोफिलिक, वाटर सल्यूबल। हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए उसको हाइड्रोफिलिक बनाना जरूरी है, ओके, मतलब वाटर सल्यूबल बनाना जरूरी है, देन ओनली वी कैन यू नो एक्सक्रीट इट आउट फ्रॉम आवर बॉडी, ओके। तो उसको हम लोग को हाइड्रोफिलिक बनाना पड़ता है, ठीक है। अब ड्रग पोलैरिटी क्या होता है, हम लोग का इंक्रीज करता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, ड्रग पोलैरिटी अगर एक इंक्रीज करता है तो क्या होता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी हम लोग का डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है एक्ट्स एज एन रिएक्टेंट फॉर फेज टू, ठीक है। मतलब क्या होता है कि फेज वन मेक्स द ड्रग सच दैट व्हेन इट रीचेस आवर फेज टू, जब वो हम लोग का फेज टू में रीच करता है, इट इजीली कॉन्जुगेट, ठीक है। मतलब क्या करता है, वो ऐसे ड्रग को फैसिलिटेट कर देता है कि वो इजीली कॉन्जुगेट कर जाए, जो हम लोग का फेज टू का मेकानिज्म है, राइट। तो इट एक्ट्स एज एन रिएक्टेंट, फेज वन जो है प्रोडक्ट जो है ना वो मिलता है हम लोग को, वो क्या करता है एज एन रिएक्टेंट काम कर जाता है फॉर facilitating the for or so that easily conjugation can takes place, right? So now tell me, the question has written, which of the following is not a objective of phase one reaction? तो ऑप्शन देखो, इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिसिटी, इंक्रीज इन लिपोफिलिसिटी, रिडक्शन इन स्टेबिलिटी, फैसिलिटेशन ऑफ कॉन्जुगेशन। तो मैं जितना अभी तक बोला, which was not happening, बाकी सारा स्टेज हुआ, एनीवन? Does it increase in lipophilicity? Yes, because at first what happened in phase one, it was making making it hydrophilic so that it could excrete out. तो पहला वाला ऑप्शन तो होगा, होता है। फिर मैं बोला क्या, ड्रग पोलैरिटी इंक्रीज हो रहा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा, मतलब थर्ड वाला भी हो रहा। लास्ट में क्या हो रहा है, इसका जो प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है वो एज एन रिएक्टेंट काम करता है, जो क्या करता है कि कॉन्जुगेशन को इजीली कंजुगेट करने में हेल्प करता है, तो इट फैसिलिटेट्स कंजुगेशन। तो विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, दैट वुड बी आवर increase in lipophilicity. That would be the correct answer. Okay. Okay. Now is this is a sum. Concentration of drug in blood is 40 mg per ml. ठीक है, 40 mg per ml is the concentration of drug in blood, और dose of drug is 200 mg। तो हम लोग को एज्यूमिंग एलिमिनेशन वीडी विली, वीडी हम लोग को प्रेडिक्ट करना होगा। तो किसी को याद है वीडी का फॉर्मूला क्या था इन रेस्पेक्ट टू डोज? X by C वेरी गुड, dose by concentration. वेरी गुड, दैट वुड बी, वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का एक्स बाई सी होगा, राइट। वेरी गुड अनुभव, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम लोग का इधर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीडी, और वीडी जो वीडी इक्वल्स टू, वेट वन सेकेंड, वेट वेट, ओके। सो हम लोग का वीडी जो होता है, वीडी इक्वल्स टू हो जाता है एक्स बाई, वीडी इक्वल्स टू हो जाता है एक्स बाई सी। तो इधर एक्स क्या है, एक्स विल बी द वीडी इक्वल्स टू एक्स बाई सी, ओके। तो एक्स क्या है, एक्स इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, और सी क्या है, सी इज द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग बैठा देंगे जैसे फॉर्मूला है, तो इट वुड बी 200, इट वुड बी 200 बाई, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन गिवन ओवर हियर, व्हाट इज क्या दिया हुआ एनीवन? 40। अब वैल्यू याद रखना होगा, ऊपर हम लोग का एमएल है और नीचे एमजी पर एमएल, एमजी पर एल, सॉरी, एमजी पर एल है, ठीक है। तो एमजी पर एल है तो क्या होगा, ऊपर एम 200 mg दिया हुआ, तो एमजी एमजी कट हो जाएगा, राइट। ऊपर क्या है एमजी, 200 mg, और नीचे एमजी पर एम एल, एमजी पर एल, सॉरी।
तो एल ऊपर चला जाएगा तो वीडी कितना बचेगा एनीवन? 200/40 और एल ऊपर चला गया जी। 5 लीटर, राइट? तो मैंने देखा है भाई, जब जीपैड में जब आता है उतना डिफिकल्ट वाला आता नहीं। अगर तुम फॉर्मूला भी याद रखोगे छोटा छोटा आता है तो सम छोटा छोटा ही आता है। कभी वो लोग बड़ा सम नहीं देते, ठीक है? तो ये क्या होता है, आंसर होगा 5 लीटर, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट वन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ drug administered at a dose of 300 mg and exhibiting 30 microgram per milliliter, instantaneous concentration in plasma shall be। तो तुम बोलो कि इधर दिया है, इधर भी दिया है वॉल्यूम ऑफ एडमिशन ऑफ अ डोज ऑफ लिखा है, तो इधर एक्स क्या होगा एनीवन? एक्स आई थिंक गिवन है, एनीवन? 300 300 mg दिया है और एग्जिबिटिंग 30 mg/ml इंस्टेनियस कॉन्सेंट्रेशन। सो सी 30 म्यूज माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर बोला है, मतलब म्यूजी। ओके, 30 ग्राम मतलब इधर क्या होगा, म्यूजी पर एमएल। ओके, अच्छा ठीक है। तो म्यूजी पर एमएल, राइट? इधर बोला है माइक्रोग्राम पर लीटर, राइट? तो म्यूजी पर एमएल होगा, राइट? म्यूजी पर एमएल। तो फिर क्या दिया गया कि व्हाट वुड बी द, क्या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, ठीक है? तो म्यूजी पर एमएल में दिया गया है, ठीक है? तो ऑब्वियस इधर भी हम लोग देखोगे तो हम लोग को म्यूजी को पहले क्या करना होगा, क्योंकि एमजी में दिया गया हम लोग का डोज, तो हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, राइट? तो 30 म्यूजी को अगर हम लोग एमजी पर एमएल में कन्वर्ट करें, व्हाट विल बी, किससे हम लोग ये इंटू करेंगे या डिवाइड करेंगे एनीवन? म्यूजी से हम लोग को एमजी पर एमएल में लाना है, म्यूजी से एमजी। तो दैट वुड बी, আমি বলে দিচ্ছি। 10 to the -3। ইয়েস, এক্স্যাক্টলি 10⁻³ দিয়ে করতে হবে, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে বা বলতে 10⁻³ দিয়ে করতে হবে, 10⁻³ ওটা উইল বি 30 × 10⁻³ mg per ml, রাইট? আচ্ছা, হয়ে গেল। এবার আমরা বসাবো ভ্যালুটা। ভ্যালুটা বসাবো মানে, ভ্যালুটা বসাবো কিভাবে? ভ্যালুটা কি করে বসাবো? ভ্যালুটা বসাবো হচ্ছে, वीडी फॉर्मूला किया है, वीडी फॉर्मूला की, वीडी का फॉर्मूला क्या दिया गया? वीडी का दिया गया है x/c, राइट? डोज बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो डोज कितना था, 300 mg, और अभी हम लोग का नया जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग एमजी में कन्वर्ट करके लाए वो कितना है एनीवन? 30 × 10⁻³ রাইট? এটাই তো, তাই তো। তাহলে 30 × 10⁻³ এবার নিচে আছে -3টা, এইটা যখন উপরে যাবে, উপরে কি হবে, উপরে ওটা পাওয়ার 3 হয়ে যাবে, রাইট? আর নিচে এখানে একটা জিরো কেটেছে, একটা জিরো কেটেছে, আর 3/30 পড়ে আছে, মানে 10 দিয়ে ইন্টু, তো টোটাল কত আসবে, 10 × 10⁻³ 10 ইন্টু কত আসবে, 10 × 10⁻³ তো 10 × 10⁻³ করলে কত হয় এনিওয়ান? 10,000 বা 10⁻⁴ বলতে পারো। আচ্ছা, 10,000ই যদি ধরো, 10,000ই যদি ধরো এমএল, 10⁻⁴ বা 10,000, 10,000 যখন বলছে 10,000, ঠিক আছে? 10,000 যদি বলো, তো আমাদের অপশন গুলো কিন্তু একটাও এমএল এ নেই। ওকে, এটা হচ্ছে কত, 10,000 হচ্ছে এমএল হলো। তো 10,000 এমএল মানে কত লিটার? 10 লিটার, রাইট?
তো এখানে অ্যান্সারটা কত হবে? 10 মানে 10 লিটার। কত অ্যান্সার হবে তাহলে? নাম্বার এ, তাই? 10 লিটার উইল বি দ্য অ্যান্সার। তো কিছুই না, ফর্মুলা বললে তুমি জাস্ট ইউনিট গুলো চেক করবে, কাজ শেষ। নেক্সট হচ্ছে, এটা মনে করতে হবে তোদের, দেখি কাদের কাদের মনে আছে। টু অর মোর ড্রাগ প্রোডাক্টস আর আইডেন্টিক্যাল in strength, quality, purity, continuity, uh, however containing different excipients. তো এটা কি হবে? কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স, থেরাপিউটিক ইকুইভ্যালেন্স, ফার্মাসিউটিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স আর বায়ো ইকুইভ্যালেন্স। তো সবকটার মনে আছে আমি যখন বলেছিলাম ক্লাসের মধ্যে যে কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স কাকে বলে, কাকে বলে, বা ফার্মাসিউটিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স কাকে বলে, কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স মনে আছে কি? মনে থাকলে অ্যান্সারটা করতে পারবে। মনে পড়েছে? কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স কখন বলেছিলাম? কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স যখন टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट्स, अच्छा, टू और मोर प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स के अंदर, टू और मोर ड्रग प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है? सेम केमिकल्स इज बीइंग यूज्ड एंड इन सेम अमाउंट और सेम केमिकल यूज हो रहा, दैट इज आवर केमिकल इक्विवेलेंस। ओके, सेम अमाउंट सेम केमिकल यूज हो रहा। और फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस क्या था? व्हेन इक्विवेलेंस is considered with respect to pharmaceutical parameters, मतलब there can be different excipients but pharmaceutical parameter जो रहेगा, उसका प्योरिटी, उसका क्वालिटी, स्ट्रेंथ, वो सब सेम रहेगा। ठीक है, दैट वाज आवर फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, राइट। और थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस क्या था? थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस था अगर दो प्रोडक्ट्स हैविंग सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट बट प्रोडक्ट शो सम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड अप टू सम एक्सटेंट, तब उसको हम लोग कहते हैं थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। और बायो इक्विवेलेंस किसको कहते हैं? which consist of everyone, okay, मतलब बायो इक्विवेलेंस मतलब they have similar viability, that is they maintain pharmaceutical equivalence, they maintain therapeutic equivalence, they maintain chemical equivalence, okay. So now tell me which one will be the answer. Yeah, pharmaceutical. Yes, in this case pharmaceutical equivalence, because in this case it is written they will be identical in purity, content uniformity, uh, and other parameters, but there can be chances of different excipients. केमिकल में क्या होता है? एक्सिपिएंट्स केमिकल, उसका डोज सब सेम होना पड़ता था, राइट? केमिकल तो नहीं होगा, इधर आंसर होगा फार्मास्यूटिक। ओके, so next is passive diffusion follow which kind of kinetics? ओके, तो पैसिव डिफ्यूजन किस टाइप का, which order of kinetics फॉलो करता है? तो दैट वुड बी, पैसिव डिफ्यूजन किस किस को फॉलो करता है? पैसिव डिफ्यूजन फॉलो करता है, तो हम लोग को क्या पता है कि पैसिव डिफ्यूजन हम लोग का किस तरह का होता है? पैसिव डिफ्यूजन में नॉन सिलेक्टिव या मिक्स्ड ऑर्डर होता है, ठीक है, या फिर सिलेक्टिव या फर्स्ट ऑर्डर होता है, या फिर नॉन सिलेक्टिव फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो पहले तुमको बता रहा, फर्स्ट ऑर्डर जो रहता है हम लोग का ओके, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर जो रहता है, दैट इज आवर फर्स्ट ऑर्डर जो रहता है, दैट इज आवर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। फर्स्ट ऑर्डर जो रहता है दैट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, ओके, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, ओके, वो पूरा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, ओके। तो और एडीएमई जो है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एडीएमई ये सब किसको फॉलो करता है? इट फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ओके, ऑल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बट समटाइम्स क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि जो प्रोटीन्स और एंजाइम हम लोग के इन्वॉल्व हो जाता है एंड सैचुरेशन उसमें दिखाई देता है एंड गेट्स कन्वर्टेड टू जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर में जब कन्वर्ट होता है वो बन जाता है कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, ओके।
जीरो ऑर्डर में आके वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट हो गया, इट्स नॉट डिपेंडेंट एनीमोर। तो इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड ऑर्डर। ओके, मिक्स्ड ऑर्डर, मिक्स्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, इसको हम लोग इसका नाम से कहते हैं मिक्स्ड ऑर्डर। ओके, बट पैसिव डिफ्यूजन जो होता है, जो पैसिव डिफ्यूजन होता है हम लोग का, इधर बोला पैसिव डिफ्यूजन, इधर तुम्हारा पार्टिकुलर मैकेनिज्म मेंशन कर दिया। पैसिव डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन या एंजाइम ये सब इन्वॉल्व नहीं होता है। सो देयर इज नो चांस ऑफ मिक्स्ड ऑर्डर, कोई चांस नहीं है मिक्स्ड ऑर्डर होने का। वो तभी होता है जब एंजाइम या फिर प्रोटीन ये सब इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को ये पता चल गया कि पैसिव डिफ्यूजन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओनली। ओके, पैसिव डिफ्यूजन के केस में फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, अब फाइंड आउट करना कि नॉन सिलेक्टिव है या फिर सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिविटी मतलब इधर बोल रहा है कि नो सिलेक्टिविटी। तो इधर कोई पर्टिकुलर सिलेक्टिविटी नहीं रिक्वायर लग रहा है, क्योंकि सिलेक्टिविटी कब लगता है, व्हेन वी, इन केस ऑफ एनी ट्रांसपोर्टर, स्पेशल केस। ठीक है, बट इन केस ऑफ हम लोग का पैसिव डिफ्यूजन, इसका कोई सीन ही नहीं है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, तो इधर नॉन सिलेक्टिव होता है। तो नाउ टेल मी व्हिच ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन केस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। The CM. यस, नॉन सिलेक्टिव एंड फर्स्ट ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीपीटी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा, एज पर इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन, पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन इज डिपेंडेंट ऑन, अब किसी को याद है देखो, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, लेवल डी, কার মনে আছে? यस, पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन जो हम लोग का होता है, दैट इज सीन इन केस ऑफ लेवल ए, जहाँ पे क्या होता है, लेवल ए में क्या होता है, लीनियर कोरिलेशन होता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, लीनियर होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। एडवांटेज क्या है कि उसमें डाटा ऑब्टेन जो रहेगा आफ्टर इन विट्रो रिजोल्यूशन, वी कैन यूज दैट टू प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर डोजेस काउंट, ये उसका एडवांटेजेस है। और लेवल बी जो होता है, उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के इन विट्रो रिजोल्यूशन को टाइम गेट्स कन्वर्टेड टू इन विवो रेजिडेंस टाइम। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि हाउ लॉन्ग हम लोग का ड्रग स्टे कर रहा है, वो रेजिडेंस टाइम बॉडी में चेक किया जाता है। बट ये जो डाटा है, इट इज डिफिकल्ट टू गेट पॉइंट टू पॉइंट कोरिलेशन। ठीक है, और इन विट्रो डाटा कैनॉट बी यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, इट कैनॉट बी, लेवल बी में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए वो यूज नहीं कर सकते। ओके, पॉइंट टू पॉइंट रिलेशन पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, और लेवल सी जो होता है, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, वहां पे हम लोग रिलेट करते हैं डिसोल्यूशन टाइम, 10, सपोज कि 10 मिनट्स में कि 10% की, या फिर T90। तो फार्माकोनिक पाइनेटर देखता है, और ये सबसे वीकेस्ट लेवल ऑफ, सबसे वीकेस्ट वाला होता है। ठीक है, वीकेस्ट लेवल ऑफ कोरिलेशन इज और लेवल्स, अगर पूछे कि विच वन इज द वीकेस्ट, देन वुड बी लेवल्स। ठीक है, और ये सिंगल पॉइंट कोरिलेशन है, एक ही जगह हम लोग कोरिलेशन फाइंड कर, सिंगल पॉइंट। ओके, अब लेवल डी तो होता ही नहीं है, लेवल डी के जगह कौन सा होगा एनीवन, लेवल डी तो হয় ही না, লেভেল ডির জায়গায় আরেকটা আরেকটা নাম ছিল, কারণ মনে আছে? এক্স্যাক্টলি, মাল্টিপল সি। ওকে, মাল্টিপল সি উইল বি, না না, ওটাও সেম, ঠিক আছে। মাল্টিপল সি ইজ লাইক সেম লাইক সি, বাট ডিফারেন্ট क्या है, বিটুইন ইন ভিট্রো ইন ভিভো কোরিলেশন দেয়ার আর সেভারাল টাইমস, অনেক জায়গায় পয়েন্ট গুলো চেক করা হচ্ছে, মানে প্যারামিটার একটা, বাট ডিফারেন্ট পয়েন্টসে গিয়ে চেকিং করা হচ্ছে। ঠিক আছে, তো দ্যাটস ওয়াই কভারিং at least 3 points they are covering, at least 3 points. So that's why it is called multiple times হচ্ছে, ঠিক আছে। So that is why this is called multiple T correlation. Okay, so here the answer will be A, that is our level A, that is our point to point correlation. আচ্ছা,
concentration versus time graph drawn from single oral dose, which parameter can be calculated? तो इधर हम लोग का कौन सा पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन प्लस टाइम ग्राफ में? तो पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. दिस इज आवर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज आवर टाइम. ठीक है. अब हम लोग कौन सा पैरामीटर, विच पैरामीटर हम लोग इधर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे. तो हम लोग पहले क्या किए, ग्राफ ड्रॉ किए जहाँ पे टी नीचे है, टी, और कॉन्सेंट्रेशन वाला इधर है, राइट ना. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसा होता है, राइट. ठीक. ठीक है. तो ये हम लोग का सी मैक्स है ऊपर, सी मैक्स. इधर हम लोग का नीचे टी मैक्स, इसका नीचे क्या है हम लोग का टी मैक्स. ठीक है. और ये बीच जो पार्ट है, दिस इज आवर एयूसी. एयूसी क्या है एनीवन? एरिया अंडर कर्व, राइट. तब हम लोग को देखना है कि कौन सा वाला इधर होता है. ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन पीक हो जो होता है, दैट इज इक्वल्स टू आवर सी मैक्स. एब्जॉर्प्शन पीक है हम लोग का सी मैक्स. ठीक है. एब्जॉर्प्शन पीक है हम लोग का सी मैक्स. सी मैक्स है क्या, किसको कहता है? एट एब्जॉर्प्शन कॉन्सेंट्रेशन इंटू एब्जॉर्प्शन रेट इक्वल्स टू एलिमिनेशन रेट. ठीक है, ये याद रखना कि एब्जॉर्प्शन और रेट इनटू कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल्स टू हो जाता है एलिमिनेशन रेट से. ठीक है. तो इधर हम लोग को मेनली जो पैरामीटर शो हो रहा इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कौन सा पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर आवर सी मैक्स, राइट. तो सी मैक्स हम लोग का इधर कौन सा है, एनीवन? ऑप्शन देख के बोलो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. यस, तो आंसर answer here will be our absorption peak. So that will be the answer. Okay. Okay. Next, in vitro and in vivo dissolution correlation. Uh, in vitro, wait, एक सेकेंड. in vitro and in vivo dissolution correlation, इसमें क्या होता है, which can be या फिर which can be obtained when in vitro dissolution is performed under. ठीक है. तो एक गुड इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन करने के लिए किस कंडीशन के अंडर परफॉर्म करना सही रहेगा? अब तुम लोग को याद रखना होगा कि इन विट्रो डिसोल्यूशन इट इज डन इन आर्टिफिशियल कंडीशन. आर्टिफिशियल कंडीशन मतलब हम लोग बॉडी का बाहर करते हैं ना इन विट्रो डिसोल्यूशन. इट इज डन इन आर्टिफिशियल कंडीशन, राइट. मतलब क्या करते हैं, वी सेट अप पर्टिकुलर पीएच, वी पर्टिकुलर apparatus एंड वी परफॉर्म आवर इन विट्रो डिसोल्यूशन. और इन विवो कहाँ पे परफॉर्म होता है? इन एनिमल्स, राइट. इन परफॉर्म्ड इन एनिमल्स. इन विवो वाला परफॉर्म होता है एनिमल, राइट. नाउ फॉर बेटर कोरिलेशन, बेटर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मेनली मेंटेन करना होगा जिस कंडीशन को, दैट इज अवर सिंक कंडीशन. बिकॉज इन विवो डिसोल्यूशन, इन विवो डिसोल्यूशन, जब हम लोग का इन विवो डिसोल्यूशन होता है तब क्या होता है, सिंक कंडीशन मेंटेन होता है. क्यों? कि सपोज अ ड्रग जो है वो होता है क्या, वो हम लोग का डोजेस फॉर्म है एंड इट कॉन्टिन्यूअसली ड्रग्स डिजोल्व्स एंड एब्जॉर्प्शन भी हम लोग का बॉडी में होता रहता है. सो द ड्रग क्या करेगा, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप नहीं होता है. सो देयर इज ऑलवेज CS ग्रेटर देन आवर CB, और दैट इज अबाउट 10% ग्रेटर देन आवर CB, क्योंकि कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन होता रहता है. सो देयर इज ऑलवेज डिफरेंस इन बिटवीन द concentration, that is they maintaining a difference in that concentration, that is they are about 10% minimum, that is our sink condition. And that is why in order to you have to maintain that difference, that is our sink condition, in order to perform a good in vivo in vitro correlation. Because absorption में continuous होता रहेगा, so there will be always CS greater than CB. Okay, in that condition we call thin condition will be the
कंडीशन जहाँ पे in order to maintain a good in vivo in vitro correlation. Okay, next. Which is used as a marker to determine total body water volume. तो इधर क्या क्या ऑप्शन दिया गया है एंटीपायरिन, मैनिटॉल, इवेंस ब्लू, रैफिनोस। ठीक है, तो किसी को पता है आंसर एनीवन? अच्छा, हम लोग देखते हो ऑप्शन देखते हैं। तो मैनिटॉल देखते पहले ना, मैनिटॉल। मैनिटॉल हम लोग का यूज होता है फॉर ईसीएफ। ओके, मार्कर एज अ मार्कर ही हम लोग यूज करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एज अ मार्कर वी यूज इन ईसीएफ। ओके, रैफिनोस, रैफिनोस भी हम लोग एज अ मार्कर ईसीएफ में यूज करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम लोग यूज करते हैं, ईसीएफ में यूज करते हैं। ओके, अब क्या है ऑप्शन? इवेंस ब्लू, इवेंस ब्लू हम लोग यूज करते हैं फॉर प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, फॉर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ओके, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, एंटीपायरिन जो होता है ये हम लोग यूज करते हैं फॉर मार्कर फॉर टोटल बॉडी वाटर वॉल्यूम। और एक भी यूज करते हैं, एनीवन किसी को पता है? अदर देन एंटीपायरिन देयर इज अनदर मार्कर दैट वी यूज फॉर टोटल बॉडी वॉल्यूम। अदर देन एंटीपायरिन देयर इज अनदर आल्सो, एंड दैट इज द ऑप्शन जो कि जीपैट में एक बार आया था। एंटीपायरिन नहीं आया था, एंटीपायरिन इस क्वेश्चन में दिया गया है, बट जीपैट में आया था कुछ साल आगे, तब वही ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर किसी को याद नहीं है। ठीक, হ্যাঁ, এবার শুনতে পাচ্ছো? আমি বলছি যে আহ, কোনটা ওয়াটার টোটাল বডি বডি ওয়াটার ভলিউমে ইউজ হয় অ্যান্টিপাইরিন। অ্যান্টিপাইরিন ছাড়াও আরেকটা ইউজ হয়, সেটা কি বলতে পারবে? অ্যাকচুয়ালি জিপ্যাটে কিন্তু একবার এই কোশ্চেনটা এসেছিল, আর তখন ওই অপশনটাই দেয়া ছিল, অ্যান্টিপাইরিন দেয়া ছিল না, কিন্তু সেইটাও অ্যাজ আ মার্কার টোটাল বডি ওয়াটার ভলিউমে দেয়া হয়। তো কেউ কি বলতে পারবে যে কোনটার কথা বলছি? ইয়েস, ভেরি গুড, D2O, that is our deuterium oxide. This is the marker, which another marker which is used in our total body water volume. Okay, so here the answer will be antipyrine, but other another one that is used, that is deuterium oxide, D2O. Very good. अच्छा, next is perfusion. अच्छा, perfusion limited model for analysis of pharmacokinetic damages under। ठीक है, तो इसमें परफ्यूशन लिमिटेड मॉडल फॉर एनालिसिस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक डैमेजेस किस मॉडल के अंदर गिरता है? ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। तो हम लोग का जब हम लोग मॉडल स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, तो उधर बहुत सारा मॉडल होता है। ठीक है, तो क्या क्या मॉडल होता है? हम लोग का काफी सारा टाइप का मॉडल होता है। ठीक है, तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना कि परफ्यूशन लिमिटेड रेट के लिए कौन सा होता है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का मॉडल होता है दैट इज अवर, क्या दिया है, कंपार्टमेंट मॉडल। कंपार्टमेंट मॉडल जो हम लोग का फर्स्ट रहता है, कंपार्टमेंट मॉडल। ओके, सी कंपार्टमेंट मॉडल। कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर मैमिलरी मॉडल होता है, और एक मॉडल होता है, एनीवन? The Cartesian model। कैटेनरी। ओके, कैटेनरी मॉडल, हाँ, कैटरनरी। कैटेनरी और मैमिलरी। कैटेनरी भी होता है और मैमिलरी भी होता है। ओके, कैटेनरी मैमिलरी। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामेडिकल पैरामीटर मॉडल। ये एकदम डिफरेंट टाइप का मॉडल, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टिकुलर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। और इसका तो ये तुमको पता ही चल रहा है कि इसमें वो आंसर होगा ही नहीं।
और एक टाइप का मॉडल होता है दैट इज आवर फिजियोलॉजिकल मॉडल। और फिजियोलॉजिकल मॉडल छोड़ के और एक ऑप्शन जो हम लोग का दिया है नॉन कॉम्पार्टमेंटल, दैट इज मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। ये कोई मॉडल अप्रोच है नहीं, इट इज मॉडल इंडिपेंडेंट। नॉन कॉम्पार्टमेंट इज मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। तो मॉडल नॉन इंडिपेंडेंट तो होगा ही, नॉन कॉम्पार्टमेंटल तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो अप्रोच है ये इस इंडिपेंडेंट और मॉडल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम लोग का बचा कंपार्टमेंट मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, फिजियोलॉजिकल मॉडल। तो फिजियोलॉजिकल जो मॉडल होता है उसका दो टाइप है, वन इज डिफ्यूशन रेट लिमिटेड मॉडल। फिजियोलॉजिकल का एक है डिफ्यूशन रेट लिमिटेड मॉडल, डिफ्यूशन रेट लिमिटेड मॉडल। और एक मॉडल है दैट इज परफ्यूशन रेट लिमिटेड मॉडल। डिफ्यूशन और परफ्यूशन, डिफ्यूजन और परफ्यूजन दो सिनोनिम, एक ही तरह का नाम है, परफ्यूशन रेट लिमिटेड ऐसे याद कर सकते हैं, परफ्यूशन रेट लिमिटेड मॉडल। तो इधर कौन सा होगा हम लोग का आंसर? फिजियोलॉजिकल मॉडल राइट आंसर, ओके। फिजियोलॉजिकल मॉडल यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इन माइकल मेंटिस इक्वेशन व्हेन वैल्यू ऑफ km इज लेसर देन c, अगर वैल्यू ऑफ km लेसर देन c हो जाए तब क्या होगा? मतलब क्या होता है? माइकल मेंटिस इक्वेशन क्या है? माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू वी मैक्स सी बाई by km के plus एम प्लस, ये हम लोग का इक्वेशन है। माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू क्या है हम लोग का? वी मैक्स, राइट, वी मैक्स बाई क्या है हम लोग का? के एम प्लस, ठीक है, ठीक है, ঠিক। D हो। ইয়েস, ভেরি গুড, ডি হবে, রাইট। তো এখানে কি হচ্ছে, লেখা আছে যে व्हेन কেএম इज लेसर देन सी, केएम जब लेस होगा सी से, व्हेन केएम इज लेसर देन सी, तो केएम अगर लेसर देन सी होगा तो इधर क्या होता है? केएम प्लस सी इक्वल्स टू होता है सी, ठीक है। ऊपर जो सी है उससे केएम प्लस सी क्या होता है? इक्वल्स टू होता है। तो डीसी बाई डीटी हम लोग का क्या हो जाता है? तो अब नया करके करते हैं, ठीक है। तो अगर केएम प्लस सी इक्वल्स टू सी हो जाएगा तो हम लोग का इक्वेशन क्या था? वी मैक्स सी बाई केएम प्लस सी। तो केएम प्लस सी के जगह हम लोग लिखेंगे ओनली सी नाउ, क्योंकि केएम प्लस सी इक्वल्स टू सी, सिंस सी इज ग्रेटर देन केएम, राइट। तो अगर वी मैक्स सी बा सी बाई सी हो जाएगा तो सी क्या होगा? कट हो जाएगा। तो डीसी बाई डी टी इक्वल्स टू क्या रिमेन रहेगा एनीवन? माइनस Vmax डीसी बाई डी टी विल बी ओनली वी मैक्स, राइट। माइनस डीसी बाई डी टी विल ओनली बी वी मैक्स, सी वी मैक्स रह जाएगा। तो इसमें क्या होगा? रेट प्रोसेस ऑकर्स एट अ कांस्टेंट रेट वी मैक्स। सो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? द रेट प्रोसेस ऑकरिंग एट अ कांस्टेंट रेट वी मैक्स, ये हम लोग को फाइंड आउट हुआ, माइनस डीसी बाई डीसी इक्वल्स टू वी मैक्स हो गया। तो इधर आंसर विच वन विल बी द आंसर? नंबर डी, राइट, তাই তো? এখানে आंसरটা হবে অপশন ডি। इधर आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ इस नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इज आल्सो नोन एज, ठीक है। अब बोला नॉन लीनियर, फिर से हम लोग को पुराना कॉन्सेप्ट लाना होगा। पुराना कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग को क्या बोले थे कि एडीएमई, एडीएमई ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है? एनीवन? जनरली किसको फॉलो करता है? first order फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर जब रहता है वो क्या होता है? लीनियर रहता है या नॉन लीनियर रहता है? linear ही तो। यस, दैट इज लीनियर, राइट, फर्स्ट ऑर्डर इट इज लीनियर। नाउ ड्यू टू सम एंजाइम या प्रोटीन जो मैंने बोला कि देयर मे बी डोज इंक्रीज एंड एंजाइम या फिर प्रोटीन कैरियर
they become saturated and it becomes saturation cause करता है ड्यू टू सम एंजाइम, जो कि मैं पहले ही बोला हूँ, सैचुरेशन कॉज करता है ड्यू टू सम एंजाइम्स और प्रोटीन, और वो क्या हो जाता है, जीरो ऑर्डर बन जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फेनोमेना को हम लोग और एक नाम भी बोलते हैं, निमान, किस ऑर्डर से बोलते हैं जब ये जीरो ऑर्डर हो गया? মিক্সড অর্ডার মনে পড়েছে? না না, মিক্সড অর্ডার। তো দিস বিকামস মিক্সড ऑर्डर, फर्स्ट और जीरो দুটোই इन्वॉल्व হচ্ছে না। तो इसको हम लोग नॉन लिनियरिटी हो जाता है, इधर नॉन लिनियरिटी, इधर क्या हो जाता है, नॉन लिनियरिटी दिखाई देता है, नॉन लिनियरिटी, नॉन लिनियरिटी दिखाई देता है, नॉन लिनियरिटी दिखाई देता है। तो इसको हम लोग और एक नाम से भी बोलते हैं, क्या किसी को याद है कि किस नाम से भी हम लोग इस फेनोमेना को बोलते हैं, नॉन लिनियरिटी जब आ जाता है? माइकल मेंटेन, माइकल मेंटेन is concerned to non-linear, माइकल मेंटेन फार्माकोकाइनेटिक्स is concerned to non-linear फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अब ये हम लोग का नॉन लीनियर का एग्जाम। अब तुम मुझे बताओ कि कौन सा इधर इन्वॉल्व हुआ है, तो विच विल बी द राइट आंसर? डोज डिपेंडेंट हुआ था, राइट? एंजाइम लिमिट, एंजाइम कैपेसिटी लिमिटेड, इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था एनीवन? है। सैचुरेशन फार्माकोकाइनेटिक्स हुआ था प्रोटीन और एंजाइम की वजह से, वो सैचुरेट बना दिया था और जीरो ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ था। तो इसलिए आंसर कौन सा होगा इधर? ऑल विल बी द आंसर, राइट? दिस विल बी द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट इज के इज कांस्टेंट बट के ई इज लार्जर। तो इस केस में सी मैक्स मोर होगा या फिर टी मैक्स मोर होगा, या फिर सी मैक्स लेस होगा टी मैक्स लॉन्ग होगा, सी मैक्स लेस टी मैक्स शॉर्ट, टी मैक्स मोर टी मैक्स शॉर्ट। तो इधर के ए जो होता है, के ए और के ई का बात किया गया है, के ए और के ई का बात किया गया है, राइट? के ए और के ई, तो के इज द एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट और के ई इज द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, राइट? तो इधर कौन सा ज्यादा बोला है, के ई बोला है या फिर के ए ज्यादा बोला है? के ई का बोला है ज्यादा, के इज लार्जर, मतलब क्या, एलिमिनेशन रेट ज्यादा है, जल्दी जल्दी एलिमिनेट हो रहा, एलिमिनेशन रेट हाई हो रहा, राइट? तो उस केस में कैसा होगा हम लोग का ग्राफ, ये हम लोग का ग्राफ है, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी ऊपर जाके जल्दी जल्दी गिर जाएगा, राइट? अगर इसके जगह एब्जॉर्प्शन रेट हाई होता तो क्या होता, वो बहुत ऊपर तक जाता उसका पीक, तब जाके गिरता, लेकिन ये जल्दी जल्दी एलिमिनेट होगा इन केस ऑफ आवर एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन होता तो ऐसे ऊपर जाके गिरता, लेकिन इसमें क्या हो रहा, जल्दी जल्दी एलिमिनेट होगा ना, फास्टर एलिमिनेशन होगा। तो इसलिए हम लोग का सी मैक्स, इसलिए हम लोग का सी मैक्स इधर होता है ऊपर सी मैक्स, तो सी मैक्स लॉ ज्यादा होगा या लेस होगा, ये तो देख के ही समझ आ रहा है कि ज्यादा होगा कि लेस होगा, तो लेस हो गए। অবভিয়াসলি লেস। আর এখানে টি ম্যাক্সটাও অবভিয়াসলি শর্টার হবে, রাইট? টি ম্যাক্সটাও তো আর বাড়ছে না, শর্টারই আছে, ঠিক আছে? তো এইখানে তাই জন্য কি হচ্ছে, ইন কেস অফ অ্যাবজর্পশন হলে সি ম্যাক্সটা মোর হতো, ঠিক আছে? তো এখানে কোন অ্যান্সারটা তাহলে রাইট হবে? सी ठीक है। ইয়েস, সি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার, সি ম্যাক্স উইল বি short and Tmax will also be short, क्योंकि due to faster elimination rate. If it was faster absorption rate, then the peak will reach more high, right? Next is flip-flop kinate phenomenon occurs when? Flip-flop phenomena occurs when? अच्छा, in normal cases, जब कोई normal case होता है, in normal case, in case of any normal case, normal case में क्या होता है कि नॉर्मल केस में हम लोग को क्या होता है
कि के ए इक्वल्स टू 3 ke होता है। नॉर्मल केस में के ए इक्वल्स टू 3 ke होता है। मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 3 टाइम्स हायर होता है एलिमिनेशन रेट से। एब्जॉर्प्शन रेट इज 3 टाइम्स हायर देन द एलिमिनेशन रेट। एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा ये होता है, लेकिन इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स एब्जॉर्प्शन रेट लिमिटिंग स्टेप बन जाता है। ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप में क्या हो जाता है, के ई जो होता है वो क्या होता है, इट बिकम्स ग्रेटर देन 3 ke। उल्टा हो जाता है, के ई ग्रेटर देन 3 ke। ठीक है। তো इसको अगर हम लोग নিচে যদি কেটাকে বসাই, কে এটাকে বসাই, তাহলে ইকুয়েশনটা কেমন হবে, কে ই বাই কে এ গ্রেটার দেন কত হবে, খালি কে এটা যেটা ছিল ওটাকে নিচে নিয়ে চলে এলাম, এইদিকে নিয়ে চলে এলাম, গ্রেটার দেন 3 হবে। তো কে ই বাই এ গ্রেটার দেন 3 ফ্লিপ ফ্লপ কাইনেটিক্স। তো এখানে অপশন কোন অ্যান্সারটা ঠিক হবে, অপশন হুইচ ওয়ান? ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स में क्या होता है, कौन सा रेट फास्ट होता है, অ্যাবজর্পশন या এলিমিনেশন? এই কোশ্চেনটা আমি অনেকবার দিয়েছি এতে মক টেস্টে, কিন্তু অনেকবারই অনেকে ভুল করে দেবো, এখন আর করে না, প্রথম প্রথম ভুল করতো। আমি মনে হয় রেট, ওই অ্যাবজর্পশন বা এলিমিনেশন, রেट लिमिटिंग বা কোনো ফাস্ট কিছু একটা বললো, তো কোনটা फास्ट হয়, कौन सा फास्ट होता है फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स में, एलिमिनेशन रेट या फिर एब्जॉर्प्शन रेट? फास्ट बोल रहा हुआ, लिमिटेड ना, एलिमिनेशन फास्ट होता है, याद रखना। नॉर्मल कंडीशन में एब्जॉर्प्शन रेट फास्टर होता है। अच्छा, व्हेन बायोअवेलेबिलिटी कंपेयर्ड विद ओरल एडमिनिस्ट्रेशन with that of oral standard, what is it called? Right, absolute, relative bioequivalence, bioequivalence और bio inequivalence। तो बायो इनइक्विवेलेंस किसको कहा जाता है, इनइक्विवेलेंस which differ in bioavailability। अगर there is difference in bioavailability, then we call it bioequivalence, मतलब ऑपोजिट। और बायो इक्विवेलेंस उसका पूरा उल्टा है, when they are two maintaining same bioavailability in condition, तो that is our bio इक्विवेलेंस, उल्टा है पूरा। अब बायो अवेलेबिलिटी का दो पार्ट होता है, एक तो रिलेटिव, एक तो रिलेटिव, एक तो रिलेटिव होता है, और दूसरा कौन सा होता है, एनीवन? एक तो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी और ना दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू। एग्जैक्टली, ओके। पर दोनों का सिस्टम अलग है, दोनों का कंडीशन अलग होता है, दोनों सेम नहीं होता। ठीक है। तो क्या होता है, एब्सोल्यूट जो होता है उसमें हम लोग, जो हम लोग का एब्सोल्यूट बायोबिलिटी रहता है उसमें हम लोग स्टैंडर्ड, एज एन स्टैंडर्ड आईवी रूट को रखते हैं, एज अ स्टैंडर्ड आईवी रूट को रखते हैं। ठीक है। और इससे हम लोग किस क्या कंपैरिजन करते हैं, वी कंपेयर टू रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग एब्सोल्यूट बायोबिलिटी से कंपेयर करता है। टू रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग रूट से हम लोग दिए हैं, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। मतलब क्या होता है, सपोज ओरल रूट्स में दिया हो या फिर रेक्टल रूट दिया हो, तो उसको हम लोग करते हैं आईवी रूट से। आईवी रूट से क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि आईवी रूट का बायोबिलिटी सबसे ज्यादा होता है या कम होता है, एनीवन? तो दैट इज व्हाई इट कंपेयर्स विद द आईवी रूट, कितना आईवी रूट से वो अच्छा है। आईवी रूट तो हम लोग का उस तरह से हम लोग कंसिडर किया, अलग अलग हम लोग डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से चेक करते, ओरल से चेक करते, नेजल से चेक करते, रेक्टल से। दैट इज आवर स्टैंडर्ड, हम लोग का फिक्स रहता है, आईवी रूट रहता है। ठीक है। और रिलेटिव जो होता है, ठीक है, रिलेटिव जो बायोलॉजी रहता है, उधर क्या होता है, स्टैंडर्ड इज आवर ओरल सॉल्यूशन। रिलेटिव में हम लोग का ओरल जो सॉल्यूशन होता है दैट रिमेन्स आवर स्टैंडर्ड। उधर क्या चेक करते हैं, उधर चेक करते हैं हम लोग, वी कंपेयर द डोजेज फॉर्म इन द ओरल रूट। मतलब
ওখানে আমরা আলাদা আলাদা ডোজেজ ফর্ম পার্টিকুলার ওই রুটে চেক করি। আগেরটা ছিল ডিফারেন্ট রুটের সাথে কম্পারিজন, বাট এখানে সেম রুটের আলাদা ডোজেজ ফর্ম। মানে ওরালি আমরা কি দিতে পারি? ওরালি আমরা দিতে পারি ট্যাবলেট দিতে পারি, इमल्शन দিতে পারি, सस्पेंशन দিতে পারি, सस्पेंशन दे सकते, कैप्सूल्स दे सकते, सॉल्यूशन दे सकता। सॉल्यूशन के साथ सॉल्यूशन फॉर्म का हम लोग ओरल ओरल सॉल्यूशन को बनाते, क्योंकि सॉल्यूशन का बायोलिटी सबसे अच्छा होता है इसमें से। ठीक है, तो इसीलिए सॉल्यूशन से हम लोग कंपेयर करते हैं। अब मुझे बताओ एनीवन कि तुम्हारे पास चार चीजें इन टर्म्स ऑफ बायोलिटी तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सॉल्यूशन है, कैप्सूल है, टैबलेट है, सस्पेंशन है, इमल्शन है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाओ कि इन टर्म्स ऑफ बायोलिटी जो सबसे अच्छा है। सबसे आगे कौन सा होगा, फिर सब नेक्स्ट नेक्स्ट करके सॉल्व करो। প্রথমে সলিউশন, ফার্স্ট উইল বি সলিউশন। এই গুড, সলিউশন হবে, দেন ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, ইমালশন, সাসপেনশন। এক্স্যাক্টলি, দেন উইল বি ইমালশন। দেন তারপরে হচ্ছে সাসপেনশন, তারপরে ক্যাপসুল, লাস্টে হচ্ছে टैबलेट। सबसे कम মনে রাখবি टैबलेट है, टैबलेट का वैलिडिटी सबसे कम है, कैप्सूल लास्ट में टैबलेट। वेरी गुड। तो अच्छा, এখানে যেটা মেন हम लोग देखना होगा कि कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया था? when biology compared with oral administration of that oral standard of same drug, then which biology, absolute or relative, anyone? Compared with oral administration with that of an oral standard, that would be our absolute। ভালো করে শোন কোশ্চেনটা পড়। when biology compared with oral administration with that of oral standard। ও মানে সলিউশন সেরকম। হ্যাঁ, ওরালের সাথে ওরাল, ওকে। তো দ্যাট ইজ আওয়ার talking about our relative biology, that will be B will be the answer। কোশ্চেনের জন্য পড়তে হয়, এটাই হয়, তাড়াহুড়ো সব ভুল করে চলে আসে। ফর ডিটারমাইনেশন অফ dissolution profile of microsphere, uh, which is the best dissolution model we can apply। तो बेस्ट डिसोल्यूशन मॉडल हम लोग किसको अप्लाई कर सकते हैं? फॉर माइक्रोस्फीयर बेकर लॉन्सलेट दिया हुआ है, हिक्सन क्वेल मॉडल दिया गया है, हिगुची मॉडल दिया गया है, लुईस व्हिटनी इक्वेशन दिया गया। तो एनीवन किसी को पता है? ये जनरल क्वेश्चन है, दिस यू हैव टू नो, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो फॉर डिसोल्यूशन प्रोफाइल ऑफ माइक्रोस्फीयर कौन सा मॉडल प्रेफर किया गया? क्यों बोलते পারবে? নয়েজ উইথনি তো ডিসলিউশন তো নয়েজ উইথনি ইকুয়েশনের উপর। বাট এখানে মাইক্রোস্ফিয়ার সবগুলোই এখানে ডিসোলিউশন প্রোফাইল চেক করা যায়, পার্টিকুলার মডেলটা বলেছি। ঠিক আছে, মডেলে আই থিঙ্ক নয়েজ উইটনি হবে না, ঠিক আছে, নয়েজ উইটনিকে আগেই বাদ দিয়ে দিবি। তো বাকিগুলো দেখে বলতে হবে, মডেলের কথা বলা হয়েছে, কারণ অনেকগুলো রিজলিউশন প্রোফাইল মডেল আছে, কিন্তু ফর্মুলেশন ওয়াইজ আলাদা হয়। ঠিক আছে, এক একটা ফর্মুলেশন এক একটা অ্যান্সারটা বলে দিচ্ছি। এখানে অ্যান্সার হোগা बेकर लिंसलेट मॉडल, बेकर लॉन्सलेट मॉडल, ओके। बाकी जो ऑप्शन है जैसे मैं बता रहा हूँ, हिगुची, देखो हिगुची दिया गया है ना, हिगुची, हिगुची इज फॉर, हिगुची कैन बी ऑल्सो यूज, हिगुची इज फॉर डिफ्यूशन मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन। डिफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के लिए हम लोग डिफ्यूजन, वन सेकेंड, डिफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ओके। फिर है तुम्हारा हिग्जोन क्रोएल, देखो ऑप्शन बी, हिग्जोन क्रोएल। हिग्जोन क्रोएल हम लोग यूज करते हैं फॉर इरोडिबल मैट्रिक्स टैबलेट, इरोडिबल मैट्रिक्स टैबलेट।
ম্যাট্রিক্স ফর্মুলেশন, সরি, ম্যাট্রিক্স ফর্মুলেশন, ইরোডিবেল ম্যাট্রিক্স ফর্মুলেশন, ইরোডিবেল मैट्रिक्स फॉर्मूलेशन, ठीक है। और भी कुछ मॉडल होता है, जैसे वेबुल, वेबुल, वेबुल होता है, वेबुल भी यूज होता है और इरोडिबल मैट्रिक्स फॉर्मूला। ओके। फिर होता है कोर्समायर, कोर्समायर पेपर, कोर्समायर पेपर, कोर्समायर पेपर, कोर्समायर पेपर जो मॉडल होता है वो होता है फॉर स्वेलेबल पॉलीमर डिवाइस, स्वेलेबल पॉलीमर डिवाइस के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्वेलेबल पॉलीमर डिवाइस, स्वेलेबल पॉलीमर डिवाइस। ओके। और पेपर सैलिन बोल के भी एक होता है, पेपर कॉर्समायर पेपर छोड़ के पेपर सैलिन भी एक तो मॉडल है, जो पेपर सैलिन ने बनाया था, पेपर और सैलिन ने मिलकर बनाया था, पेपर सैलिन, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर स्वेलेबल पॉलीमर डिवाइस, पेपर सैलिन। ओके। ये कुछ मॉडल थे, ठीक है। और इधर हम लोग को पूछा गया है फॉर हिगुची के लिए मैं बोला डिफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन। দাদা একটা এমসিকিউ দেখছিলাম, ওটাতে ওই ইউজি মডেল কিসের জন্য কাজ করে দেখেছি। তো ওখানে দুটো অপশন ছিল, একটা হচ্ছে তোমার অসমোটিক্যালি কন্ট্রোল সিস্টেম, হুম, আর একটা হচ্ছে এইটা হবে ম্যাট্রিক্স। হ্যাঁ, কিন্তু আমি কিন্তু এটাই জানি ভাই, তাও আমি একটু দেখবো, ঠিক আছে, দেখে তোকে শিওর বলতে পারবো, বাট আমি যতদূর জানি ম্যাট্রিক্স ফর্মুলেশন, ঠিক আছে। তাও আমি তোকে কালকে ঠিক আছে, তুই আমাকে নিজেও পার্সোনালি পাঠিয়ে দিস, আমি পরে একটু নিজেও দেখবো, ঠিক আছে, তোকে বলবো, 100% যেটা শিওর দেখছি তুই বলবো। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে, নেক্সট ইজ দ্য সাম, কোনটা? ও আচ্ছা, ওইটা হচ্ছে সোয়েলেবল পলিমার ডিভাইস, হয়েছে। ওকে, নেক্সট ইজ এস্টিমেট দা, ওয়েট, estimate the plasma concentration of drug when 100 mg is given by IV bolus to a 70 kg patient whose volume of distribution is of 42 लीटर। तो इधर हम लोग का ड्रग 100 mg, दिस इज आवर एक्स, राइट, डोज इज 100 mg, एक्स हम लोग का 100 mg। अब IV bolus to a person 70 kg बोला फॉर 80 VD ऑफ 42, अच्छा VD इधर 42 लीटर्स में दिया गया, अगर ये 42 लीटर्स के जगह पर पर्सन बोलता, 42 लीटर पर पर्सन या पर पेशेंट, तब प्रॉब्लम हो जाता था, तब हम लोग का ये जो 72 kg है ना, ये यूज में आ जाता। पर इधर 72 के 70 kg का कोई यूज ही नहीं है, बिकॉज वीटी से 42 लीटर में दिया गया, ऐसा कोई अलग करके पर पर्सन कुछ बोला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग का जो पुराना फॉर्मूला है वही यूज होगा, सी इक्वल्स टू एक्स बाई वी डी, राइट। तो कोई मुझे सॉल्व करके बताओ, एक्स बाई वी डी मतलब 100/42 होगा, तो कोई सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। 2.4 mg/ml, ओके, दैट वुड बी द आंसर। वेरी गुड। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তখন 70 kg ইউজ হবে, কারণ ওটা পার পেশেন্ট বলেছে, বাট এখানে উইদাউট, এখানে শুধু 42 লিটার বলেছে, তাই এখানে ওটার কোনো ইউজই নেই। তো এটা দেখে অনেকে অনেকে ভাবে যে ওইটা কোথাও একটা ইউজ হবে, তো কোয়েশ্চেনটা আগে পড়তে হবে যে ওটা যদি পার পেশেন্ট বলতো তখন ব্যাপারটা আলাদা, কিন্তু যখন এখানে 42 লিটারে দেওয়া আছে মানে ওইটার কোনো কাজই নেই, যেমন নর্মাল ফর্মুলা তেমনই ইউজ করতে হবে, অনেকে ভাবে ওইটার জন্য হয়তো চেঞ্জ হবে, বাট ভালো করে কোয়েশ্চেনটা আগে পড়তে হবে। নেক্সট ইজ পার পার্সন মানে কি হবে তুমি নিজেই ভাবো, অনুভব বলো, পার পার্সন যদি হতো তাহলে কি হতো। ওটা যদি
লিটার পার কেজি হতো, মানে 1 কেজিতে 42 লিটার ভলিউम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, তাহলে हाँ 70 केजी में एग्जैक्टली 70 तब 40 हम लोग को 70 × 40 करना होता तब डिफरेंट आंसर आ जाता एग्जैक्टली दैट वुड बी द आंसर ওকে বুঝতে পেরেছো তো হ্যাঁ তো কোশ্চেনটা আগে পড়তে হবে ঠিক আছে যে মানে কি লেখা আছে ওইটা যে 70 কেজি লেখা তখন আমরা অনেকেই ভাবি যে তাহলে 70 কেজিটা কোথাও ইউজ হবে আর হয়তো নাও হতে পারে কনফিউজ করানোর জন্য দেয়া আছে ঠিক আছে তো নেক্সট হচ্ছে লোডিং ডোজ ডিভাইডেড বাই মেंटेनेंस डोज इज कॉल्ड तो एल डोज बाई लोडिंग डोज एल डोज बाई मेंटेनेंस डोज बोला तो इसको क्या कहा जाता है ये जनरल क्वेश्चन है एल डोज बाई एम डोज इसको क्या कहते हैं anyone? इसको पता है दिस इज आवर डोज रेशियो ओके दिस इज आवर डोज रेशियो एल डोज बाई इसको कहते हैं डोज रेशियो अच्छा लोडिंग डोज एल डोज मतलब लोडिंग डोज किसको कहा जाता है लोडिंग डोज डोज दैट प्रोड्यूस इनिशियल इफेक्ट जिस डोज के थ्रू इनिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज आवर लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज किसको कहा जाता है मेंटेन द इफेक्ट ऑफ द इनिशियल डोज मेंटेनेंस डोज का काम है वो जो लोडिंग डोज है उसका जो इफेक्ट है उसको मेंटेन करता है मतलब इनिशियल जो डोज है उसका जो इफेक्ट है उसको मेंटेन करता है दैट इज आवर मेंटेनेंस डोज तो हियर द आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन दैट इज डोज रेशियो which of the following is the show non-linearity due to active tubular secretion in excretion of drugs तो ये हम लोग का कुछ फार्माकोलॉजी बायो फार्मास्यूटिक्स हम लोग का कॉम्बो ही है बोल सकते हैं फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी तो फार्माकोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आई थिंक सही रहेगा फिर भी इधर दिया गया है तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट ये एक जनरल क्वेश्चन है ठीक है तो हम लोग को ये याद रखना होगा कि नॉन लिनियरिटी कब होता है नॉन लिनियरिटी कब होता है मैंने बोला था कि हम लोग का एडीएमई जो है वो किसको फॉलो करता है इट फॉलोज आवर फर्स्ट ऑर्डर लेकिन अगर उसमें कोई एनर्जी या फिर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उधर गया सैचुरेशन या फिर डोज साइज डिक्रीज का चांस हो जाता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर किस में कन्वर्ट हो जाता है एनीवन हाँ मतलब जीरो ऑर्डर और इस फेनोमेना को बोलते हैं हाँ जीरो ऑर्डर कन्वर्ट है और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर राइट जहाँ पे नॉन लिनियरिटी शो होता है माइकल मेंटेन्स फार्माकोकाइनेटिक्स हम लोग स्टडी करते हैं राइट दैट इज आवर दैट इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड ऑर्डर राइट अब ये जनरल तुमको याद रखना होगा कि कौन सा तुम लोग अगर पढ़े हो कि इधर कोई ड्रग है इस चार ऑप्शन में जो कि क्या होता है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन कॉज करता है दैट इज कैरियर प्रोटीन उसमें लगता है तो अब मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा कौन सा ड्रग के केस में एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है और कैरियर प्रोटीन का दरकार पड़ता है कैरियर प्रोटीन दरकार होता करता है उसमें क्या होता है नॉन लिनियरिटी शो होता है कोई बता पाओगे दिस इज जनरल क्वेश्चन ग्लूकोज पेनिसिलिन जी एस्कॉर्बिक एसिड कार्बाजिपाइन वेरी गुड पेनिसिलिन जी में ही एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है और कैरियर प्रोटीन का दरकार होता है पेनिसिलिन जी विल बी द राइट आंसर ओके दिस विल बी द राइट आंसर ये एक बार जीपैट में आया भी है ओके दिस क्वेश्चन एक बार जीपैट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये आया भी है एक बार राइट आंसर ये है पेनिसिलिन जी नेक्स्ट नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन परमिएट बाय पैसिव डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू कौन सा टाइप का पार्टिकल परमिएट नहीं करता तो पैसिव डिफ्यूजन को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं दैट इज नॉन आयोनिक डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन को हम लोग नॉन आयोनिक डिफ्यूजन भी बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन को हम लोग नॉन आयोनिक डिफ्यूजन भी बोलते हैं तो उसमें क्या होता है फॉर पैसिव डिफ्यूजन हम लोग को क्या क्या क्राइटेरिया ध्यान रखना होगा फॉर पैसिव डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो तुम लोग का जग में मेंटेन होना चाहिए ओके क्या क्या क्राइटेरिया है
क्राइटेरिया ये है कि इट शुड बी आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड, सॉरी, ड्रग अगर अनआयोनाइज्ड रहे तो दैट इज फेवरेबल फॉर पैसिव डिफ्यूजन। और क्या क्या क्राइटेरिया है कि ड्रग अगर नॉन पोलर रहे तो और भी अच्छा है। ड्रग अगर नॉन पोलर रहे, एनपी रहे, नॉन पोलर, नॉन पोलर अगर रहे तब और भी अच्छा। या फिर ड्रग अगर लिपोफिलिक रहे, या फिर लिपिड सॉल्युबल रहे, राइट, लिपोफिलिक या फिर लिपिड सॉल्युबल रहे, देन आल्सो इट फेवर्स द इट फेवर्स आवर पैसिव डिवीजन, लिपोफिलिक या फिर लिपिड सॉल्युबल रहे। अब क्या होगा, ड्रग इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा, राइट। और इसमें कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता। कौन सा में एटीपी रिक्वायर्ड होता है एनीवन? यस। तो इसमें हम लोग का कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, दैट इज हायर से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो करता है। तो डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ड्रग, राइट। तो उसमें अब तुम लोग को बताओ कि कौन सा सब्सटेंस परमेट नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन देखो, लिपिड सॉल्युबल, नॉन आयोनाइज सब्सटेंस, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, तो कौन सा हुआ? हाइड्रोफिल। यस, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल तो होगा ही, क्योंकि मैं बोला ही पहले कि लिपोफिलिक या लिपिड सॉल्युबल होगा तो वो अच्छा। नॉन आयोनाइज तो पहले ही बोला कि आइडियल फॉर पैसिव डिफ्यूजन, राइट। हाइड्रोफोबिक मतलब लिपोफिलिक का ही बात कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक अगर रहे, वाटर सॉल्युबल रहे, देन इट डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ तुम्हारा पैसिव डिफ्यूजन, ओके। तो हियर द आंसर वुड बी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। अच्छा, नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट। तो इसमें कौन सा फैक्टर्स ड्रग एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं? और कितने ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा तो आंसर तुमको पता है कि पीएच जो होता है हम लोग का स्टमक, वो क्या होता है, पीएच हम लोग का स्टमक रहता है एसिडिक, इट रिमेन्स एसिडिक। तो क्या होता है कि ड्रग जो एसिडिक होता है, it remains unionized in this phase and further gets absorbed, right, rapidly। तो इस स्टमक में क्या होता है, एसिडिक, वो अनआयोनाइज रह जाता है, राइट, इट रिमेन्स अनआयोनाइज। तो ऑब्वियसली क्या है कि पीएच ऑफ स्टमक का इफेक्ट है, राइट। प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी, जीआईटी में अगर फूड रहेगा तो वो उसमें क्या होगा, डिलीवरी जल्दी भी हो सकता है, डिले कर सकता है, वो भी डिपेंड करता है। अगर फूड नहीं रहेगा तब फास्ट भी हो सकता है। तो फूड अगर जीआईटी में प्रेजेंट है तब भी तुम्हारा ड्रग एब्जॉर्प्शन स्लो या फास्ट हो सकता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, सॉल्युबिलिटी, ड्रग अगर सॉल्युबल ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी हम लोग, बायोलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी से, और बायोलिटी से एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बायोलिटी अगर फास्ट होगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन जो है वो भी फास्ट होगा, राइट, वो भी फास्ट होगा, एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, राइट। तो विच वन, तो बचा एक ही ऑप्शन। तो बताओ विच वन विल बी द आंसर, विच इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन? Yes, protein binding in this option will be the right. It doesn't affect the drug absorption. Okay. अच्छा, next. Next is, this is an MCQ. Okay. And this is the uh, last question that we'll solve for today. Okay. So ये हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तुम्हारा टास्क है, तुम अभी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट, पूरा बता दूंगा कैसे करना है। और अगर तुम चाहते हो तुम लोग नेक्स्ट दिन भी बोल सकते हो ये आंसर ये होगा। तो कुछ नहीं, मैं तुम लोग को बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इधर क्वेश्चन जो दिया गया है, दैट इज पीके ऑफ लिडोकिन इज 7.9, और पीएच ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू इज 8.9। तो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग आयोनाइज्ड, तो कितना परसेंटेज बोला है कि ड्रग आयोनाइज्ड होगा। तो परसेंटेज आयोनाइजेशन का इधर फॉर्मूला लगाना होगा, परसेंटेज आयोनाइजेशन का, परसेंटेज
परसेंटेज आयोनाइजेशन का फॉर्मूला लगाना हो, परसेंटेज आयोनाइजेशन का फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। परसेंटेज आयोनाइजेशन का फॉर्मूला लगाना होगा, राइट। परसेंटेज आयोनाइजेशन का फॉर्मूला लगाना होगा, तो परसेंटेज आयोनाइजेशन जो फॉर्मूला है वो क्या था, वो हम लोग का था 10 pK माइनस pH बाई 1 + 10, कॉपी में लिखना, pK माइनस pH ब्रैकेट क्लोज इनटू 100, परसेंटेज के लिए 100 बाहर। तो क्या है परसेंट फॉर्मूला परसेंटेज आयनाइजेशन का, परसेंटेज आयनाइजेशन फॉर्मूला है 10, 10 के बाद ब्रैकेट में दिया गया है pKa, pK माइनस pH हो गया इधर का, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर नीचे दिया गया है 1 + 10 ब्रैकेट में pKa माइनस pH, फिर पूरा को इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज हम लोग को निकालना है। अब तुम लोग वैल्यू पुट करो, वैल्यू क्या पुट करोगे, वैल्यू अगर पुट करोगे तो इधर देखोगे ऊपर क्या होगा 10, पीके क्या दिया गया इधर, एनीवन, 7.9। 7.9 पुट कर दोगे, 7.9 माइनस पीएच क्या दिया गया, 8.9, ठीक है। और नीचे सेम पुट करोगे 1 + 10 बाई 7.9 माइनस 8.9, राइट, इंटू 100, 7.9 माइनस 8.9, नीचे होगा 10 + 1 + 10 इंटू 7.9 माइनस इंटू, तो अब सॉल्व करो एनीवन। কত এসছে, বাকি লোক माइनस माइनस कट हो जाएगा, डोंट वरी। 7 পয়েন্ট মাইনাস 899 ওটা ম্যাটার করবে না। কি হো বাকি লোক, অনুভবের কত এসেছিল ওপরে, 10 এসেছিল তো উপরেরটায়, আর নিচেরটায় 11। আচ্ছা 10/11 ইন্টু 100 এসছে, তাই তো।
তাহলে ওটা কত হচ্ছে? 90%। 90%, তো বাকিদেরও এসছে তো 90%। দাদা বলছি চেকটা একবারও তো 10 মানে ওটা মাইনাস ও হ্যাঁ, না এক সেকেন্ড দেখি একবার। পিকে মাইনাস পিএইচ আছে হচ্ছে -1, তাই তো? -10, হ্যাঁ বল কি বলছিস অনুভব? দাদা ওইটা তো কনসিডার করে না। হ্যাঁ ওটা করে না, ঠিকই বলেছে, কারণ না হলে হচ্ছে আসবে না এটা। তাহলে তো একটাই অপশন আছে, না অ্যান্সারটা এটা আসবে যদি হচ্ছে পিকে এটা হতো 7.9, এই সরি 8.9, আর পিএইচটা হতো 7.9, তাহলে কি এটাই আসতো দেখতে একবার। হ্যাঁ দাদা। তাহলে ওইটাই হবে, নাহলে অপশন আসবে না। তো এখানে কোয়েশ্চেনটা একটু ভুল আছে, এটা 8.9 হবে, ঠিক আছে। এবার দেখো এটা 8.9 দিয়ে কি ওটা আসছে 90%, নাহলে কোনো অপশন আসবে না এখানে যেগুলো দেয়া আছে। একটু কনফার্ম করে নাও, তাহলে ওইটাই হবে, পিএইচটা হবে হচ্ছে এখানে 7.9, পিকে এটা হবে 8.9। তাহলে কি আসছে? এবার কনফার্ম হয়ে নাও। ওটা উল্টোটা করলে 90%ই আসছে। হ্যাঁ উল্টোটাই হবে, নাহলে অপশনটা তো আসছে না যদি ওইভাবে হয়, তাহলে এটাই হবে। ঠিক আছে, এমনি 90 এসছে তো এখন করে। হ্যাঁ দাদা। ঠিক আছে। ঠিক আছে, ফর টুডে এ এই কটা সামই থাকুক, ঠিক আছে। এটা থেকেও এগুলো পুরোনো কনসেপ্ট মনে করা হলো, ঠিক আছে। এটা দিয়ে এইটারই কাছাকাছি কনসেপ্টই কোশ্চেন আসবে, ঠিক আছে। এমন কিছু কঠিন আছে না, তাও যেখানে পারো এমসিকিউ যদি পাও সলভ করো, ঠিক আছে। আর এই উইকে आई थिंक मॉक टेस्ट হয়নি, मॉक टेस्ट नहीं हुआ इस वीक संडे को, लेकिन बीच में कोई डेट में फिर से होगा, क्योंकि एक दो जन का कुछ प्रॉब्लम था। मेरा और एक तो वीडियो भी मैंने बनाया है रिकॉर्डेड, वो है तुम्हारा, इसका एमसीक्यू सॉल्व किया है तुम्हारा प्री फॉर्मुलेशन का। वो एक्चुअली अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि आई थिंक आकाश का कुछ प्रॉब्लम हुआ है फैमिली में, तो मैंने सेंड किया था, 2 दिन हो गया। उस कारण वो शायद अभी वो देखे नहीं, इसलिए अपलोड नहीं हुआ। तो उसको अपलोड करूंगा, वो भी तुम लोग चाहो तो देख लेना, वो प्री फॉर्मुलेशन का किया गया है, प्री फॉर्मुলেशन করা হয়েছে। আর এটা নেক্সট উইকে আপলোড হয়ে যাবে আই থিঙ্ক, ওর মিটে গেলে, ঠিক আছে। আর আই থিঙ্ক মক টেস্টও একটা মিডিলে হবে, তারপর আবার স্যাটারডে সানডে হবে, নাহলে আজকে মক টেস্ট হওয়ার কথা ছিল, হয়নি। তোর ও দিতে থাকো যত এখন এমসিকিউ কাছাকাছি আছে। 1 মাস আই থিঙ্ক টাইম আছে, আর খুব বেশি। 7 তারিখ তো এক্সাম নাকি? 7 তারিখ তো নাকি? হ্যাঁ দাদা। ওকে, তো এমসিকিউ করো, ঠিক আছে এখন।